Hello, children. Welcome to the second session of this chapter Pollution of Air and Water. In this session, we are going to study about water pollution. We know, students, that water is a very important resource for us. There are various activities in our life that we perform with the use of water, along with drinking, cooking food, bathing, washing, and it is used for growing crops, industrial production, and in case of hydroelectricity, it is used for electricity generation. So there are various use uses of water in our life. And as soon as the population is increasing, जैसे जैसे population बढ़ता जा रहा है, हमारा वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रहा है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्री एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वाटर स्कार्स होता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है और हम लोग जल संकट के करीब पहुंचते जा रहे हैं. नाउ you see here that how water becomes dirty. Water becomes dirty after after we use for washing clothes, bathing, etc. What happens to water when it becomes dirty? Some substances are added to the water. Adding of some material to the water makes water dirty. It spoils the quality of the water and it changes its smell and color. तो वाटर में अनवांटेड सब्सटेंस का, हार्मफुल सब्सटेंस का मिल जाना, जिस वजह से वाटर की क्वालिटी बदल जाती है, उसका स्मेल और उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन. And you'll see here that what are those substances. So the addition, first of all, let us revise the definition. The addition of unwanted substance to the water which spoils the quality of the water is known as this process is known as water pollution. And as we move onward, we see that whenever these harmful substances such as sewage or toxic chemical or silt, which are a grain like structure, fine structure, fine you can say fine material, then the sand से ज़्यादा फाइन मटेरियल होता है सिल्ट. फ्लड के केस में रिवर वाटर में सिल्ट ही कैरिड होता है, दलदल जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर सिल्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें वाटर को पोल्यूट करती हैं. जब ये वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, और इसलिए इन सब्सटेंसेस को जो वाटर को पोल्यूट करती हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स. So these are some examples of water pollutants. So as we move onward in activity number 18.5, it is we have to identify water from different sources. Different sources से water आए हैं, उसमें हमें smell, acidity और color को टेस्ट करना है. So this is an activity which can be performed. So we'll find here that there is a difference in the smell. In these properties, सारे अलग अलग सोर्सेज से वाटर आए हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेगा.
And now we have a case study. How does water get polluted? And this case study is related to the river Ganga. We see this one is a path of flow of river Ganga. It originates in the Gomukh in the Himalayas, and it moves like this uh, from the northern plains, and then it falls into the Bay of Bengal by forming two branches. One branch known as Hooghly and the other branch is known as Bhagirathi Ganga. And we see different cities also located on its bank, like Haridwar, then Kanpur, Allahabad, Varanasi, Patna. These are some of the important cities located on the bank of this river, and Kolkata also. So, what has happened to the water quality in the river Ganga? गंगा भारत की सबसे फेमस रिवर में से एक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया. और ये फ्लो करती है नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये बेनिफिट पहुँचाती है. मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो अपने डेली नीड्स के लिए रिवर पर डिपेंड करते हैं, गंगा रिवर पर डिपेंड करते हैं. एक स्टडी के मुताबिक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, इसके स्टडी के मुताबिक गंगा दुनिया के 10 सबसे endangered rivers में से एक है. It is one of the 10 most endangered rivers. दुनिया में जितने भी नदी खतरे में हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, या जिनका पानी बहुत खराब हो चुका है, उनका एक लिस्ट बनाया गया. तो उसमें टॉप 10 में गंगा को रखा गया. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ये लिस्ट बनाया था, और उसमें कहा गया कि ये जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले कई वर्षों में. और अब हम ऐसे स्टेज में आ गए हैं, वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज ये जो स्टेज हमारा है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो शहर हैं, हमारे जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वो जिनसे होकर के या जिनके किनारे से होकर के ये नदी गुजरती है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में गार्बेज, कचरे को फेंकते हैं, अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को फेंकते हैं, डेड बॉडीज को इस रिवर में फेंका जाता है, एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स, ये सब इस नदी में डाला जाता है. तो इस वजह से they are put directly into the river, so these make the river polluted. और एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवर एक तरह से डेड हो जाता है कई जगहों पर, जहां पर पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाता है. तो वैसे वाटर रिसोर्स को हम डेड बोलते हैं जहां पर कोई एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं होता है, जिसके अंदर कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स नहीं रह पाते हैं. तो कई जगहों पर गंगा रिवर की भी ये स्थिति है, और इसलिए एक एम्बिशियस एक आप कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लान बनाया गया ताकि इस रिवर को प्यूरिफाई किया जा सके, इसको क्लीन किया जा सके. एंड दिस प्लान वाज नोन एज गंगा एक्शन प्लान. लेट मी टेक द हाइलाइटर.
I think that will work better. Saving, and here it is. This is a marker. This is ink. This is ink. Okay, you're using this earlier. Now let us take a mark. How it works? It is good. So this plan is known as Ganga Action Plan, and it was launched in the year Ganga Action Plan. It was launched in the year 1985, and its aim, इसका जो लक्ष्य है वो रिवर में पॉल्यूशन लेवल को कम करना। बढ़ते हुए पॉपुलेशन के साथ और इंडस्ट्रीज जैसे जैसे फैल रहे हैं, उसकी वजह से गंगा रिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव। तो गंगा एक्शन प्लान 1985 से ही वो लागू किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ, आप ये कह सकते हैं कि हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल नहीं की थी रिवर को क्लीन करने से रिलेटेड। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नई पहल करनी पड़ी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो इससे वाटर रिसोर्स के ऊपर दबाव पड़ा और वाटर रिसोर्स में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ती गई, और इस वजह से कोई खास सुधार गंगा के वाटर क्वालिटी में नहीं हो पाया। सो दैट इज वाई इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पहल की, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये लॉन्च किया 2016 में। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के यहाँ पर देखते हैं कानपुर के पास क्या स्थिति होती है गंगा रिवर की। गंगा रिवर कानपुर के पास, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। यहाँ इस जगह पर गंगा रिवर का सबसे प्रदूषित भाग देखने को मिलता है। कानपुर यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एक शहर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी, और ये पॉपुलेटेड टाउन्स होने की वजह से यहाँ पर आप देखें, पीपल वाटर रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये यहाँ भी देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है रिवर में डायरेक्टली बिना किसी ट्रीटमेंट के। पीपल यूज्ड टू बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिफिकेटिंग इन द रिवर। रिवर में वो वेस्ट मटेरियल्स को डालते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो वाटर है वो पोल्यूटेड होता है। और उसके अलावा गार्बेज, फ्लावर्स, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स, ये सब रिवर में डाले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिवर जो है वो पोल्यूटेड होता है। What happened? Can't delete it. Okay, leave that. So these are the things which makes the river polluted. And this is not. Wait. Okay, let us move onward. What happens at Kanpur, the amount of water
is comparatively small and the flow of the river is very slow. So वहाँ पर वाटर का जो अमाउंट है रिवर में वो बहुत ही कम होता है और फ्लो बहुत ही स्लो रिवर वहाँ से गुजरती है। और उसके अलावा कानपुर में लगभग देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 5,000 इंडस्ट्रीज हैं कानपुर में, जिसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। तो ये सारे इंडस्ट्री में से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो पॉल्यूटेंट्स जा करके गंगा रिवर में मिलते हैं, जिस वजह से गंगा रिवर का जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट से भर चुका है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जिस वजह से वाटर का पॉल्यूशन होता है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज हो गए, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, ये सब हार्मफुल केमिकल, ये सारे इंडस्ट्रीज भी हार्मफुल केमिकल डिस्चार्ज करते हैं गंगा रिवर में इन्हें। और इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज जहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है बड़े स्तर पर, वो भी अपने पॉल्यूटेंट को रिवर में डिस्चार्ज करती हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज वाटर का केमिकल कंटेमिनेशन काउज करते हैं। केमिकली ऐसे इंडस्ट्रीज वाटर को पॉल्यूट करते हैं। Chemical contamination of water, they cause chemical contamination of water. और इनमें देखें ये हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। हैवी मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, these are heavy metals. These heavy metals, see arsenic, lead and fluoride, these are heavy metals. और ये हैवी मेटल्स टॉक्सिक भी होते हैं। ये हैवी मेटल्स जब वाटर में पाए जाते हैं और वाटर के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में चले जाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स के बॉडी में चले जाते हैं। जब एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा तो ये उनके बॉडी में भी चले जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इनके ज़्यादा सेवन से डेथ भी हो सकती है, ये फैटल भी होता है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। और उसके बाद फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये सारे जो मेटल्स हैं ये हमारे बोन्स को भी वीक बनाती हैं। सो वी शुड स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ chemical contamination of river water. There are various regulations, various rules to prevent this. इंडस्ट्रीज को जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट करके भेजना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करके तब उसे रिवर वाटर में डिस्चार्ज करना चाहिए, लेकिन अधिकतर जगह पे ये रूल फॉलो नहीं होता। And so we see that soil, the proper method is that the industrial waste should be treated before discharging into the waters, before discharging into the river. There is a detailed method for treating this industrial waste. इसमें से सबसे पहले जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, उन्हें सेपरेट किया जाता है, उन्हें क्रश किया जाता है और उसके बाद उन्हें फिल्टर किया जाता है। फिर उसमें
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं ताकि उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वेस्ट हैं उन्हें डिकम्पोज कर सकें और उनके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट को भी ये डिजॉल्व ऑक्सीजन के अमाउंट को भी ये इंक्रीज करते हैं और उसके बाद फिर ये जो ट्रीटेड वाटर है ये रिवर्स में या वाटर बॉडीज में डालना चाहिए, लेकिन अक्सर ये रूल फॉलो नहीं होता है और इस वजह से जब इम्प्योर वाटर सॉइल के ऊपर पड़ता है तो इससे सॉइल एसिडिक हो जाता है, सॉइल बिकम्स एसिडिक, वॉर्म्स बढ़ने लगते हैं. So all these happens due to the improper treatment of the wastewater. और हम जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स which are the chemicals used to kill the pests in the crop field. पेस्ट इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इन्हें किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए इंसेक्ट हो सकते हैं पेस्ट में, इसमें रोडेंट्स हो सकते हैं, माइस हो सकते हैं. इनको किल करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसे पेस्टिसाइड कहा जाता है. और वीडीसाइड वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, और अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज किया जाता है दैट इज नोन एज वीडीसाइड. तो पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन ये केमिकल्स वाटर में घुल जाते हैं. दीज केमिकल्स डिजॉल्व इन वाटर और उसके बाद ये वाटर बॉडीज में चले जाते हैं. दे आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज. फील्ड से, क्रॉप फील्ड से ये वाटर बॉडीज में चले जाते हैं. वाटर बॉडी में जाने के बाद फिर जो वाटर बॉडीज में एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये उन्हें हार्म करते हैं और फिर ये ग्राउंड वाटर में जब मिल जाते हैं तो ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देते हैं. और आपने देखा होगा पॉन्ड्स में, बहुत सारे पॉन्ड्स में ऐसा होता है कि पॉन्ड के सरफेस के ऊपर एक ग्रीन लेयर डेवलप हो जाता है. वो ग्रीन लेयर एक्चुअली एल्गी का होता है और एल्गी के इस विस्तार को, इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कहते हैं हम एल्गल ब्लूम. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम कोई फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर के साथ भी सेम कंडीशन होगा. फर्टिलाइजर भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वाटर बॉडीज में चला जाएगा और वाटर बॉडीज में एक्सेसिव क्वांटिटीज जब केमिकल्स की बढ़ जाती है जो फील्ड से आते हैं बह करके पानी के साथ, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं एल्गी के लिए. एल्गी एक सिंपल प्लांट है. आइए एल्गल ब्लूम को देखते हैं वो कैसा दिखता है. Let us have a look on algal bloom. So this is how it looks. Algal bloom on the surface of water bodies. यहाँ जो वाटर बॉडी दिख रहा है इसमें एल्गल ब्लूम है. You see the growth of algae on the surface of water. These are the green plants that you see. These are algae. Due to the growth of this green algae, the color of this water is green. देखिए इस तरह से एल्गी ग्रो करता है. इतना ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ एल्गी का जो हुआ है इसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं
और ये न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने की वजह से ऐसा होता है। देखिए ये आप रेड भी देख सकते हैं इसे, ये एल्गी रेड भी होते हैं, green algae, red algae and brown algae. There are different colors that algae shows. तो इसके केस में आप देखें जब इसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा तो ये वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करने लगेगा, और फिर जब ये डाई करता है, एल्गी जब मर जाता है तो ये वाटर बॉडी में जमा हो जाता है, और इसके डिकम्पोज होने से जो आप देखेंगे ऐसे पॉन्ड, किसी भी पॉन्ड के पास आप जाएंगे तो आपको एक फाउल स्मेल मिलेगा देखने को। फाउल स्मेल आप फील कर सकते हैं। एक बार जब ये एल्गी मर जाते हैं तो ये डिकम्पोजर्स के लिए फूड का काम करते हैं। डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया वो सब डिकम्पोज करता है, और इसको डिकम्पोज करने के लिए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज अप, और इसके डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया को, और इसलिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और फिर जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन्हें दिक्कत होने लगती है। तो इससे ऑक्सीजन लेवल वाटर का घट जाता है जो एक्वाटिक एनिमल्स को मार सकता है। इस वजह से एक्वाटिक एनिमल्स मर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई बार देखें ये अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली रिवर में थ्रो कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? फूड वेस्ट होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हें जब हम थ्रो करते हैं तो देखिए इस तरह से वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। वाटर कंटेमिनेटेड विथ सीवेज में कंटेन, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स। तो ये सब वाटर बॉर्न डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, in which fever happens, diarrhea and dysentery also in case of cholera. Typhoid is a type of fever, and jaundice के केस में जो बॉडी होता है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है। It is also known as hepatitis B. Let us have a look on some of the symptoms of these diseases: cholera, typhoid, and there was one more. Here it is: cholera, typhoid, and jaundice. All these are waterborne diseases. Cholera symptoms: it is caused by bacteria, Vibrio cholera. Let us have a look with from pictures. It will be better for us to understand. So from this it is clear. You see, let this picture be clearly visible. So you see, headache होता है, वॉमिटिंग होती है, ब्रेथ लेने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, एब्डोमेन्स में पेन होने लगते हैं, क्रैम्प्स डेवलप होने लगते हैं, रैशेस डेवलप होने लगते हैं एब्डोमेन में, और डायरिया भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कोलेरा के। यहाँ भी आप देखेंगे, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोलेरा: frequent watery stool, vomiting, weakness, dehydration, shock. These are the symptoms of cholera. Next, jaundice. Let's take this one.
फीवर, येलोइंग ऑफ नेल, नेल येलो हो जाता है और स्किन्स भी येलो पड़ने लगते हैं, इचिंग हो जाता है स्किन पे, रैशेस इस तरह से डेवलप होने लगते हैं. इट हैपेंस इन केस ऑफ जॉन्डिस. यू सी देयर इज अ डिफरेंस. हेल्दी इस तरह का दिखता है बॉडी. इन केस ऑफ जॉन्डिस इट लुक्स लाइक दिस. वाइट्स ऑफ द आईज टर्न्स येलो, आईज भी यहाँ पर येलो होने लगते हैं, स्किन येलो पड़ने लगता है, फीवर आ जाता है. तो दिस ऑल हैपेंस इन केस ऑफ जॉन्डिस. इट इज अ वाटरबॉर्न डिजीज. नेक्स्ट, typhoid. What happens in case of typhoid? You see, the fever is high, high fever, headache, weakness, dry cough, stomach pain, constipation, and rashes develops on the body. So these are the symptoms of typhoid fever. It is also caused by bacteria. So all these waterborne diseases are caused by drinking contaminated water. Bacteria present in the facies of mammals are the indicators of the quality of water. So bacteria, if the bacteria has these, if water has these bacteria, देखिए वो बैक्टीरिया जो मैमल के बॉडी में पाया जाता है, और वो बैक्टीरिया यदि वाटर में पाया जाए तो इसका मतलब ये है कि वाटर पॉल्यूटेड है. वाटर के अंदर जो एनिमल है, एनिमल का वेस्ट वाटर में गया है. इस वजह से एनिमल का जो फीकल मैटर है, एनिमल का जो वेस्ट है जो उसने एक्सक्रीट किया है, वो वाटर में चला गया है और इस वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है. तो ऐसा वाटर कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता है. If such water is used by us, it can cause various infections. So that is why we use the term potable water for drinking water. The water which is fit for drinking is known as potable water, and we'll see how it is purified. So you see that potable water is the water fit for drinking. Water which is suitable for drinking is known as potable water. There are various methods to get potable water, to make water potable. Various physical and chemical process जिससे गुजरने के बाद वाटर को पोर्टेबल बनाया जाता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी वाटर का फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट होता है. उसके बाद इसे वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं. और म्युनिसिपल बॉडी भी जो वाटर सप्लाई करता है वो भी वाटर को प्रॉपर्ली ट्रीट करके सप्लाई करता है घरों में. And this is a fact that 25% of the world population is without safe drinking water. Now let us talk about the methods which we can use to purify water, to make water potable. The first one is that filtration. वाटर को फिल्टर करके हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं. दिस इज अ फिजिकल मेथड. और इसमें हाउस होल्ड फिल्टर, एक कैंडल टाइप फिल्टर होता है, उसका यूज किया जाता है. आरओ में भी आपने देखा होगा, कैंडल टाइप फिल्टर होता है. कैंडल से होकर के, कैंडल में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे होकर के जब वाटर पास करता है, उससे होकर के सिर्फ वाटर पास कर सकता है. छोटे से छोटे सॉलिड सब्सटेंसेस भी उसमें फिल्टर हो जाते हैं, उसे पार नहीं कर पाते, और इस वजह से हमें प्योर वाटर मिल जाता है. तो इससे इम्प्योरिटीज क्लीन हो जाती है फिजिकल मेथड से, लेकिन जर्म्स उसमें तब भी रहते हैं.
जर्म्स को किल करने के लिए हमें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। बहुत सारे हाउस होल्ड में बॉइलिंग भी की जाती है, वाटर को बॉईल करके भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। इससे हाई टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो जाता है। तो बॉइलिंग जो है वो वाटर के जर्म्स को किल कर देता है। फिर एक और प्रोसेस है स्टूडेंट, क्लोरीनेशन, मिक्सिंग ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर, क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर इन द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट्स हमें नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो वाटर का टेस्ट बिटर हो जाएगा। और ज़्यादा क्लोरीन लेने से हमें हाँ ज़्यादा क्लोरीन हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं एक्सेस क्लोरीन लेने से, वो से देख लेते हैं। व्हाट विल हैपन double P if we take excess chlorine tablets? Tablets in water and excess spelling is mistaken. Excess chlorine water, this one is the correct. And let us search in the web portion. You see क्लोरीन पॉइजनिंग काउज होता है, और इससे क्लोरीन पॉइजनिंग के केस में क्या क्या हो सकता है देखिए। क्लोरीन हैज ए पंजेंट, एक तो स्मेल खराब हो जाता है, और फिर no, there's nothing clear here. Chlorine poisoning can occur when you touch. What happens in chlorine poisoning? Few common household products. Symptoms क्या क्या है देखिए, माउथ में बर्निंग होगी, स्वेलिंग इन थ्रोट, गले में सूजन हो जाएगी, एंड थ्रोट में पेन भी होगा, स्टमक पे पेन होगा, वॉमिटिंग, ब्लड इन द स्टूल्स। ये सारे सिम्टम्स हैं क्लोरीन पॉइजनिंग की। So that is why we should not use much more amount of chlorine tablets to purify water. So let us okay, first of all let us complete this one, and what can be done. This is a topic related to the preventive measures for controlling water pollution. So laws has been made for industrial unit for proper disposal of wastewater, so that polluted water is not disposed of directly into the lakes. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज में इंस्टॉल्ड होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी हम वाटर को कॉन्शियसली यूज़ कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। हमें रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल के फार्मूला को यूज़ करना चाहिए। वाटर को के यूज़ को, जो एक्सेस यूज़ है उससे कम करना चाहिए। जैसे बाथिंग के समय वाटर का ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो वी कैन मिनिमाइज दैट वन। वाटर को रीयूज़ करना चाहिए। The water which has been used in bathing or washing clothes, it can be used for watering plants in the gardens. And wastewater is also recycled. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसे रिसाइकल करके इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। और क्रिएटिव आइडियाज, वी कैन आल्सो थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, जैसे लाइक रीयूजिंग ऑफ द वाटर used for washing and for household tasks. For example, using of water used for washing vegetables
कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन, ये यूज कर सकते हैं. पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फेनोमेना. पॉल्यूशन एक ऐसा फेनोमेना है जो हमारे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में दिख ही जाता है, और ये हमारे लाइफ को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है. इट अफेक्ट्स ग्रेटली आवर लाइफ. So we should realize that it is our responsibility to follow eco-friendly or environment-friendly processes so that we can prevent our planet from the danger of pollution. सारे resources polluted हो जाएंगे तो फिर हम healthy कैसे रह सकते हैं, हमारे survival पे भी danger आ सकता है. So you see here, this one is the thing. ये छोटी सी चीज़ है, जब आप टीथ को ब्रश कर रहे हो तो टैप को ओपन ना रखें. ऐसे केस में टैप को यदि आप ओपन रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है. अ टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड वेस्ट 1,000 ऑफ लीटर वाटर एवरी डे. एक टैप जो एक सेकेंड में एक बार उससे वाटर ड्रॉप होता है, लीक करता है, तो इस वजह से वो हर एक ईयर कई हजारों लीटर वाटर जो है वो वेस्ट कर देता है. सो दिस वन आप बड़े स्केल पर यदि आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा वाटर का वेस्टेज एक लीकिंग टैप से एंड एक ड्रॉप वेस्ट होता है, तो लंबे समय में वो कितना ज़्यादा अमाउंट में वो कन्वर्ट हो सकता है, कितना ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है. सो वी कैन मिनिमाइज दिस वेस्टेज. So student, this was all in this chapter, pollution. In this session we have studied the pollution of water, and let us have a look on some of the processes of cleaning water and wastewater treatment plant. Let us have a video on it. Wait, let me search straight away from the Google. First of all, we have to look on methods for making water potable. We need a video on it. Just potable water. In today's video, we're going to take a look at potable water, which is what we call water that's safe to drink. Oh, it is completely an British English version. 5 ways to purify water. Okay, let us search here for children. Yes, it is good now. So water treatment. Through the pump in the ground. About 10 minutes. Number 3, remove the pot. Various sources may contain this. Various source allows some things to pass through it, but not others. Wait, let us have a look on this video. Purification of water. Earth is a watery planet, yet water is a precious commodity. Can you guess why? This is because just 3% of all the water available on Earth is fresh water. The rest, 97%, is saline water of the oceans. Out of this 3%, the surface water of rivers, lakes, or springs forms an even smaller percentage. Fresh water from various sources
may contain disease-causing germs and impurities. Large-scale water purification is done before it reaches our homes. So, let's see the journey of water before it reaches our home. At the end of this module, you will be able to define and describe sedimentation, filtration, and aeration, describe the process of chlorination and adding disinfectants, describe the journey of water from the sources to our homes. Here is a simplified diagram of a water treatment plant. Fresh water from the rivers and lakes. So this is how water treatment plant works, and you can see this from here. This is the natural resource from where water has been taken. In this one is the intake tank, and later on there are different tanks here: sedimentation tank, coagulation tank, filtration tank, aeration tank, disinfectant tank, and the last one is the storage tank. So water which you see in the tank has all these steps to go through, then it reaches to the storage tank. Lakes are taken through pipes to large water treatment plants for purification. In the first stage of purification, water is pumped and stored in large sedimentation tanks. Alum is commonly used as a coagulant which forces tiny particles of dirt to stick together and settle down. तो एलएम का यूज किया जाता है। एलएम जिसे फिटकिरी भी कहते हैं, इसमें पोटेशियम एल्युमिनियम का ये कंपाउंड होता है। तो ये एलएम जब मिलता है तो इसमें आप देखेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल होने लगते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं वाटर में, इम्प्योरिटीज, तो वो नीचे जमा होने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन, नीचे जमा होना। ये सेडिमेंटेशन टैंक है, ये कोगुलेशन है। सेडिमेंटेशन में जो सेडिमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज हैं, वो अनडिस्टर्ब छोड़ देने के बाद वाटर को ये नीचे अपने आप जमा हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत ही फाइन सिल्ट पार्टिकल्स हैं वो तैरते रहते हैं, वो नीचे जमा नहीं होते। उनके लिए हम एलएम ऐड करते हैं वाटर में। तो एलएम ऐड करने से वो फिर नीचे जमा हो जाते हैं। एलएम उसकी चारों तरफ घेर लेता है, डस्ट के पार्टिकल्स के चारों तरफ अपना एक घेरा बना लेता है। इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल हैवी हो जाते हैं और वो नीचे जमा हो जाते हैं। In the second stage, water is carried from sedimentation tanks to the filtration tanks. Here, water is passed through the beds of charcoal, sand, and gravel. This process removes the remaining suspended impurities. ग्रेवल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। The third stage of purification process is aeration. Air is passed through the filtered water in the reservoir by a pump with air diffusers. The circulation of air reduces the concentration of taste and odor-causing substances. तो एयरेशन टैंक से इसमें एयर मिलाया जाता है। एयर मिलाने के बाद इसका जो स्मेल है वो खत्म हो जाता है। This process is known as aeration. Disinfecting is the first stage of the purification process. इसमें देखिए अब डिसइंफेक्ट किया जाएगा इस वाटर को। ये वाटर प्यूरिफाई हो चुका है। इसमें जर्म्स अभी हो सकते हैं, तो इसके लिए केमिकल डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं हम, जो एक पिंक कलर का सब्सटेंस होता है। ओजोन यूज कर सकते हैं, ओजोन रेडिएशन से यहाँ पर पास गुजारेंगे इसको तो ओजोन से यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कर सकते हैं, क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पर केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट में इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेडिएशन डिसइंफेक्टेंट के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करते हैं। Stage. Water is carried from the aeration tank to the disinfectant tank. Adding disinfectants such as chlorine destroys disease-causing organisms in water.
Ultraviolet radiation and oxidative chemicals such as potassium permanganate and ozone are also used for disinfecting water. What's next? Yes, now the water is purified and ready to drink. This water is stored in the storage tanks and supplied in towns through underground pipes. Thus, water undergoes several processes before it reaches our taps as potable water. So in this video, we have seen how water is made potable. So student, that was all in our today's class: water pollution effects and the ways to reduce it. This is the time of the video. Let us have a look. So we can have a look on this also. With this video, we'll after this video we'll dismiss the session. Be the solution to water pollution is the need of the hour. The major effects of water pollution is the damage to the food chain. When harmful toxins are present in water, they are transferred to higher level organisms through the food chain. Heavy metals like lead, mercury, iron, cadmium, aluminium, and magnesium are present in water sources. If these metals are present in the sediment, they reach the food chain through plants and aquatic animals. This causes heavy metal poisoning in the water. Polluted water is a hotbed for diseases. Microbial water pollution can spread infectious diseases such as typhoid and cholera from drinking contaminated water. Water pollutants alter the overall chemistry of the water, causing changes in acidity, conductivity, and temperature. These in turn have an effect on the marine life. Heavy rain carries the dirt and silt and deposits them into the water. If the dirt and silt settle in the water body, then these sediments prevent sunlight from reaching aquatic plants. If the sunlight can't reach the plants, they perish. These sediments also clog up fish gills and suffocate organisms that live on the bottom of the body of the water. If oil is spilled on the water due to accidents, the effects on the ecosystem and the components are harmful. Many animals can get destroyed in case they swallow oil. Things we can do to reduce water pollution are: do not pour fat from cooking or any other type of fat, oil, or grease down the sink. Keep a fat jar under the sink to collect the fat and discard in the solid waste bin full. Do not dispose of household chemicals or cleaning agents down the sink or toilet. Avoid using the toilet as a waste basket. Most tissues, wrappers, dust cloths, and other paper goods should be properly discarded in a waste basket. Do not flush pills, liquid, or powder medications or drugs down the toilet. Install a water-efficient toilet. Run the dishwasher or clothes washer only when you have a full load. This conserves electricity and water. Use the minimum amount of detergent and or bleach when you are washing clothes or dishes. Use only phosphate-free soaps and detergents. Minimize the use of pesticides, herbicides, fertilizers. Do not dispose of these chemicals, motor oil, or other automated fluids into the sanitary sewer or storm sewer systems. Both of them enter the river. If you do your part to prevent pollution in your area, then you will be helping to protect water for both yourself and everything else
that relies upon this precious resource. So be one more to save the shore. Okay, that's all in today's session, student. With this, we have come to the conclusion of this chapter. So that's all in today's session. Thank you for joining. Have a great day ahead.